Good morning, students. I hope I'm audible. Students, last class we started with the topic that was production function, right? We had discussed long run and short run production function, things that will change in terms of flexibility, in terms of resource in long run, and things which cannot change in the short duration. In short duration, to increase or decrease your production, you can just play with one variable, either your machines or your people, majorly the people, right? So discussing what is long run production, right? We went into this concept that is economies of scale, and we understood this particular term that is economies of scale, right? So the concept economies means saving, bachat. Scale means growing. Okay, scale means growing. So how you can grow by having economies, right? So bachat kari karine, how you can grow, how you can scale up, how you can put that extra saved money into improvisation of your production efficiency output, right? So every small saving in the business will lead to reinvestment of money, and in long run you will be able to scale your business, right? So whenever we talk about scaling of business, yes, Karan, investment, right? Whenever we talk about scaling the business, that is expanding the business, what you will need is the investment, right? And more you grow, the investment requirement will be more, but production efficiency will improve in such a way, right? As per the principle of Henry Fayol. What is that? Division of work, right? When the work is increasing in size, you divide the work among the people. Every person who is doing that part of work will specialized in that work, वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, बिकॉज वो स्पेशलाइज्ड हो गया है, वो अभी कम टाइम पे कम वेस्टेज से कम रिसोर्सेज यूज करके भी अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकेगा, isn't it? Right? So this entire concept of economies of scale will lead to bring the small savings which will improve your money allocation to other thing, right? And long run this will happen, this is not something which is going to happen in short run. Okay, this is not something which is going to be in long run. So in long run you may discover better methods, better technology, right? And this will help you to reduce the cost per unit, right? क्योंकि आप ज्यादा बना रहे हो, ज्यादा बेच पा रहे हो, per unit cost will decrease. Okay, so now when we say this particular theory is known as law of return to scale. Okay, so there are two theories mainly. There are three actually, but second and third is almost similar. There is fine line of difference that we will discuss later. So there are two main theory which you will study in this chapter: law of return to scale, and second is law of diminishing return, which is known as law of variable proportion. ठीक है, दो लॉ हम स्टडी करेंगे.
Law of return to scale was proposed by Alfred Marshall. Marshall's contribution is very important, right? So it is Alfred Marshall law of return. So he classified that whenever we talk about economies of scale, I hope the concept was clear, economies of scale, in the last lecture. किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट इकोनॉमीज ऑफ स्केल टर्म में है? Term economies of scale, right? So if it is clear with everyone, please put clear in the chat box. Economies of scale. किसी को अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज आप डालो नॉट क्लियर. Right, remember the example of tuition class which I gave? Yes, everyone. 43, 41 students are there in the class. Okay, so considering your feedback in the chat box, right, I go ahead considering that you know the meaning of the word economies of scale, right? So now एल्फ्रेड मार्शल सेट दो तरह की इकोनॉमीज होती हैं, एक है इंटरनल, दूसरी है एक्सटर्नल. सो लेट अस सी व्हाट इज इंटरनल इकोनॉमीज एंड व्हाट इज एक्सटर्नल इकोनॉमीज. Internal economies is achieved when you have improvement in either of this 5 area. ठीक है, इन 5 एरिया में अगर आप improve कर पा रहे हो, you will be able to save your cost and save your time. पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज फाइनेंस, थर्ड इज मार्केटिंग, फोर्थ इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड फिफ्थ इज रिस्क बेरिंग इकोनॉमिक्स. ठीक है, हम आज ऑलमोस्ट फर्स्ट 4 कर पाएंगे, राइट? सो लेट्स गो अहेड. टेक्निकल इकोनॉमीज, right? So when the size of company is increasing, right, when the size of company is increasing, you can now afford to get into technology. ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में हम बोले, राइट, से फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोले, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लाइक लिज्जत पापड़. ठीक है, लिज्जत पापड़ इज बेसिकली अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पता है ना सबको लिज्जत पापड़? कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पे महिला काम करती हैं, राइट? वी से महिला उद्योग, राइट? तो देर व्हाट डिड दे डिड कि पापड़ बनाने से आमदनी इनकी हो, उस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने रन कराया. सो फ्यू हाउस होल्ड स्टार्टेड मेकिंग पापड़. द डिमांड फॉर द पापड़ इंक्रीज्ड ओवरऑल इन द मार्केट. सो दैट लेड देम टू दैट पर्टिकुलर आइडिया ऑफ गेटिंग मोर पीपल ऑन बोर्ड, राइट? सो कई सारी महिलाएं ऐसी होती थी जिनके घर से अलाउड नहीं था टू गो आउट एंड टू वर्क. सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू ब्रिंग देम, उनको एक डेमो देते थे कि कैसे पापड़ बनाना है, और उनको बोल दिया कि आप बनाओ, बना के यहाँ पे दे के जाओ और पैसे लेके जाओ. देन अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हुआ ये प्रॉब्लम के टेस्ट ऑफ पापड़ फ्रॉम डिफरेंट वुमेन इज डिफरेंट. हर एक जगह से जो पापड़ आ रहे हैं, सबके वहां का टेस्ट डिफरेंस है. सो इट डिड नॉट वेंट विद द अपील ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं लग रहा है. फिर उन्होंने डिसाइड किया कि कोई एक ग्रुप, राइट, राइट, एक स्पेसिफाइड इंग्रेडिएंट्स, उसकी प्रोसेस बनाई कि क्या क्या चीजें कितनी प्रोपोर्शन में हम डालेंगे इफ वी आर मेकिंग 10 kgs ऑफ पापड़. सो जो आटा होता है पापड़
બનાના, રાઈટ, वो जो खीचू, राइट, गुजरातीમાં આપણે खीचू કહે છે. So खीचू, how to make it, what should be the ingredients to be added, उसको standardize कर दिया. And one, I mean, center में they used to make this खीचू, and then they used to distribute it to different household. So सुबह आके आपको वो खीचू लेके जाना है. उस दिन आपको वो पापड़ बना लेना है. 2 दिन में जब वो पापड़ ड्राई हो जाए आपको सबमिट करना है. So they went for standardization of the raw material, that is खीचू. As the size increased, now it was market भी थी, demand भी था, लोग भी थे. Then they thought of coming up with the technology. किस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज से दे कैन मेक दिस मिक्सचर, ह्यूज साइज का मिक्सचर वो बना सके खिचू का, राइट. एंड नाउ वी हैव ऑल दिस ऑटोमेशन मशीन ऑल्सो, जब पापड़ को खुद बेल लेते हैं एंड ऑल दैट, राइट. सो टेक्नोलॉजी, जब आपका बिजनेस एक साइज से ज्यादा ग्रो होने के लिए तैयार है, यू कैन इम्प्रूव द बिजनेस efficiency of business, standardization of product by introducing machines. मशीन से क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. मशीन का बेनिफिट क्या है, टेक्नोलॉजी का बेनिफिट क्या है, यू विल ऑलवेज हैव स्टैंडर्डाइज आउटपुट. सी फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट पिज्जा, आपकी मम्मी जो घर पे पिज्जा बनाती है, ठीक है, एवरी टाइम व्हेन शी मेक्स पिज्जा, राइट, कभी कभी आपको एकदम स्टैंडर्ड लगता है, कभी कभी डिपेंडिंग ऑन हर मूड, ऑन द एक्सपेरिमेंट दैट शी वुड लाइक टू डू, चेंज दिखता है. So every time you cannot expect it as standard as it should be. Why? Because आज फॉर एग्जाम्पल कैप्सिकम समर चल रहा है, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिले. विंटर में पिज्जा ज्यादा अच्छी बनती है, समर में इतनी, यू नो, द रॉ मटेरियल, राइट. सो हियर इफ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन पिज्जा, यूएस पिज्जा पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम से बनता है, राइट. नाउ दे हैव आइडेंटिफाइड वन जोन जहाँ पे हैंडमेड they are making, but majority of the products are standardized. So you can standardize the process only. जैसे बालाजी वेफर पहले क्या था, they were working manually. इतने आलू को कट करना, छीलना, बॉईल करना, फ्राई करना, फिर मसाला डालना, कितने सालों तक वो पूरा मैनुअल चला. एंड नाउ इट इज टोटली ऑटोमाइज. सो व्हाट मेड दिस ऑटोमेटिक थिंग, ये जो पूरा टेक्निकल ऑटोमेशन उसमें हुआ, उससे क्या हुआ, अभी सारी वेफर स्टैंडर्डाइज हो गई, सेम साइज की कट हो रही है, सेम साइज की अवेलेबल है, available in the same packing. That this led to building the brand that is Balaji Wafer, right. So टेक्नोलॉजी जो है वो आपका डिसीजन है, आप कौन सी टेक्नोलॉजी बिजनेस में ला रहे हो, उससे कितना प्रोडक्शन होगा, कितना स्टैंडर्डाइजेशन होगा, राइट. दिस विल इंक्रीज योर स्केल, वो आपका प्रोडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा. यू विल नीड मोर लेस नंबर ऑफ पीपल, राइट. मशीन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होगा, बट देन इट विल लीड टू स्टैंडर्डाइजेशन, राइट. सो लार्ज फर्म जहाँ पे रॉ मटेरियल इफेक्टिवली यूज होना चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए, राइट, उस जगह पे जब आप टेक्नोलॉजी, मशीन टूल्स, राइट, आप डालते हो, दिस विल हेल्प यू टू स्केल अप योर बिजनेस, प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा. इज दिस क्लियर? टेक्निकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमीज, पॉइंट क्लियर है ये? सो मशीन से आपको ज्यादा प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी मिल गई, राइट. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज. अभी फाइनेंशियल इकोनॉमीज मतलब बचत इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. जो भी आप पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, वो कौन से नेचर का होता है, वट एवर मनी यू पुट इन द बिजनेस, वो पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है वो पैसा? ये स्टूडेंट्स, लोन से आता है, राइट, बैंक लोन, राइट, लोन फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. देन यस, अपने खुद की प्रॉफिट जो आती है उसको आप री इन्वेस्ट करो, उसको हम बोलते हैं प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, उसको हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है.
दूसरा पब्लिक शेयर, यस, शेयर मार्केट, राइट, गो विद इक्विटी प्रेफरेंस एंड यू विल गेट द मनी. थर्ड, इश्यू डिबेंचर, जिसको हम बोलते हैं बोरोड फंड. ठीक है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल, which is going to be a capital which will be less cost effective. I mean, which will be highly cost effective. जहाँ पे आप बचत कर सको. See for example, taking money from your friends and relative. कम rate of interest में without standardized documents you can get that. You can get more money in the business, right? And you can make effective use. अगर हम बात करें प्रॉफिट की रिजर्व जो हम कर रहे हैं, right, every year we put profit into reserve. Now we can use this reserve. So यहाँ पे मुझे कहीं पे इंटरेस्ट नहीं देना है, राइट, मेन अमाउंट नहीं देना है. सो प्लाविंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इंटरनल कैपिटल बोलते हैं इसको. इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, राइट. डिबेंचर, राइट, कॉस्ट इफेक्टिव है, पर अगेन जब भी आपकी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी, आपको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट. सो वहां पे भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, राइट. डिबेंचर परचेज करने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. लोन लिया तो उसका कॉस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन लोन. ठीक है. कितना सारा हम ब्याज इंटरेस्ट भर देते हैं, राइट, इन अ लोन ऑफ 12 लाख रुपीज, राइट, फॉर 20 years. दिस इज अ रफ एस्टिमेशन आई एम सेइंग. 12 लाख की लोन जो आपने ली है, राइट, 20 साल तक या 12 साल तक, almost in 20 years you pay 8 lakh rupees of loan. We all know, कार लोन जब हम लेते हैं, कार की कीमत 7 लाख रुपए है. एट द एंड जब हम वो पूरा कैलकुलेट करें, 8.5 लाख रुपए का टोटल खर्च है. 1.5 लाख रुपया हमारा किसमें गया? इंटरेस्ट पे करने में. तो दिस इज अगेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. क्या है ये? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव क्या है? तो इनिशियल प्रोसेस में आपको इनकर करना पड़ेगा सारा कॉस्ट, पर लेटर ऑन उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट होंगे, एंड दिस इज इक्विटी कैपिटल, राइट. सो इक्विटी कैपिटल, बोरोड कैपिटल, ठीक है, लोन लेना, डिबेंचर लेना, ये कब करोगे? यू विल डू इट व्हेन यू आर ग्रोइंग लार्जर इन योर साइज ऑफ फर्म. ठीक है. आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाह रहे हो, आपको पैसे चाहिए, लॉन्ग टर्म पैसे चाहिए, तब यू विल गो फॉर बोरोड और इक्विटी कैपिटल, राइट. सो यू विल फाइंड आउट द मीन्स एंड वेज जिससे आपको सस्ता कैपिटल मिले, बाय शोइंग कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, आप आराम से वो पैसे पे कर पाओगे, राइट. से फॉर एग्जांपल सब्सिडीज विच इज अवेलेबल राइट नाउ फ्रॉम गवर्नमेंट. सब्सिडीज विच इज अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है. सो करण, इफ यू से दिस, कैन वी स्टार्ट बिजनेस विद जीरो मनी? जीरो मनी से कंसल्टेशन बिजनेस स्टार्ट होते हैं, जहां पे आप खुद की कॉस्ट को नहीं फिगर करते हो, बट जीरो कैपिटल से ज्यादातर कुछ स्टार्ट होता नहीं है. ओके, यू नीड मनी, राइट. यू नीड मनी फॉर नेटवर्किंग. किसी को पूछा, किसी से मिले, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को मिले, राइट, यू वेंट विद सम गिफ्ट, चाय पानी, रेस्टोरेंट, whatever, कुछ भी जीरो नहीं है. बट when we talk about the subsidies from government, see for example लास्ट ईयर मेरे पास अगस्त में ये डॉक्यूमेंट एक आया था, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप के बिजनेस जो किसी को स्टार्ट करने हो उसमें सब्सिडीज दी थी. तो से फॉर एग्जांपल उसमें स्मॉल बिजनेस, ये ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्कीम थी. किसी फॉर एग्जांपल किसी को सिलाई का काम चालू करना है, तो 1 लाख रुपीज का सब्सिडी गवर्नमेंट ने दिया था. किसको पार्लर और सलून चालू करना है, तो उसका भी समवेयर अराउंड 1,50,000 तक का था. किसी को अच्छे से ट्यूशंस क्लासेस चालू करने हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेंटर या स्किल डेवलपमेंट सेंटर चालू करना है, तो उसकी सब्सिडी 2 से 5 लाख तक थी. ओके, सो इन दैट केस यू मे फाइंड आउट सच ऑल्टरनेटिव्स. यू मे फाइंड आउट यू मे फाइंड आउट सच ऑल्टरनेटिव्स जिससे आपको कॉस्ट इफेक्टिव कैपिटल मिले. ओके, सो एमएसएमई सेंटर में जब आप जाओगे, राइट, इवन एमएसएमई पोर्टल में भी आपको दिखेगा कि कौन से बिजनेस में गवर्नमेंट इज रेडी टू इन्वेस्ट.
सो वो क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया. सो गवर्नमेंट मनी व्हेन यू आर हैविंग थ्रू सब्सिडी और थ्रू एनी अदर थिंग्स, राइट, आपका इंटरेस्ट का कॉस्ट बच गए. सो दिस इज इकोनॉमीज इन फाइनेंस. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बचत होना, इंटरेस्ट ना पे करो, डिविडेंड ना पे करो, तो भी आपके पास कैपिटल होना. ठीक है. सो आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फाइनेंशियल इकोनॉमीज. लोन, इक्विटी, राइट, जिससे भी आप ले रहे हो उसमें इंटरेस्ट का खर्चा अगर आपका बचा पाओ आप. मेनी पीपल यू नो दे शिफ्ट देयर लोन. सी फॉर एग्जांपल, I have one loan for the property in IDBI. ठीक है. It's almost at the verge of completion. But seeing my bank account and the amount which is there in Kotak, every time, ये आप सब भी देख रहे होंगे, there are so many calls which you receive from bank saying कि हम आपको कम पैसों में लोन देंगे. So if I'm paying 9% of home loan, okay, 9% interest में पे करी हूँ अभी से, फॉर एग्जाम्पल IDBI, and if Kotak is giving me in 7%, then I should shift to Kotak. I should find out इंटरेस्ट रेट कहाँ पे कम है. फिर ऐसा ना हो कि 7% इंटरेस्ट रेट है, उसके अलावा कोई अदर चार्जेस है, बिकॉज इफ दैट अदर चार्जेस आर एडेड तो वो 9% ही हो जाएगा. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि गवर्नमेंट, जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, प्राइवेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, इंश्योरेंस कंपनी है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कहाँ से आप पैसा लोगे जो आपको बचत करने में हेल्प करेगा. इट विल हेल्प यू टू सेव योर इंटरेस्ट. सो दिस इज कॉस्ट सेविंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस. तो इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमीज. क्लियर है ये टर्म, financial economies? Everyone, is the term clear? Financial economies. Any more example if you want, please put in the chat box. ठीक है. So now we move to the next. Marketing economies. ठीक है. Marketing economies. मार्केटिंग इकोनॉमीज मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट को जब बेच रहे हो, हाउ आर यू एबल टू सेव इन द मार्केटिंग कॉस्ट. अभी मार्केटिंग कॉस्ट दो तरह के होते हैं. एक है आपका प्रोडक्ट बन गया और उसको आप सेल कर रहे हो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स. ठीक है. थ्रू एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, ठीक है, सेल्समैनशिप. तो दैट इज वन साइड ऑफ मार्केटिंग कॉस्ट. दूसरा है व्हेन यू वांट टू गेट रॉ मटेरियल. बिजनेस प्रोडक्ट बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो उससे पहले भी आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा. यू हैव टू गो, यू हैव टू सोर्स, यू हैव टू फाइंड कि कहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेंगे, किसके पास से सस्ते मिलेंगे, किसके पास से फ्री डिलीवरी मिलेगी. ठीक है. किसके पास से ज्यादा लंबा क्रेडिट टेन्योर मिलेगा. ओके. सो जब आपकी कंपनी की साइज आपकी बढ़ जाएगी, राइट, मार्केटिंग विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर. अभी से फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ कंपनी लाइक अमूल, जिसका पूरा का पूरा काम चलता है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क से. सो पहले मार्केटिंग करने के लिए दे वुड हैव रेंटेड सम पीपल, कोई एजेंसी को रेंट किया होगा जो सप्लाई चेन को मैनेज करेगा. ठीक है. अभी सीइंग द लॉन्ग टर्म डिमांड के ये आपको सप्लाई करना ही है, दे मे थिंक ऑफ गेटिंग दोज डिस्ट्रीब्यूटर्स इन हाउस. चलो एक दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. से फॉर एग्जांपल यू आर मार्केटिंग योर गुड्स. ओके. यू आर मार्केटिंग सम ऑफ योर गुड्स. से फॉर एग्जांपल इट इज अमूल. ठीक है. अमूल है, राइट. आप अमूल की एड अगर देखो, इफ यू सी अमूल एड, are they endorsing single product or they are endorsing all the product in their advertisement? I want answer to this question. अमूल की जब आप एड देखो तो अमूल एक प्रोडक्ट को लेके एडवर्टीजमेंट करता है या अपनी एडवर्टीजमेंट में वो सारे के सारे प्रोडक्ट एक साथ दिखा देता है.
प्रजीत, वन वन किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है? जिन जिन लोगों ने वन वन दिया है, प्लीज पुट फॉरवर्ड के मिल्क। मिल्क वाला जो आप बोल रहे हो ना, ध्रुति एंड विवेक एंड प्रजीत, ठीक है। अ, जब मिल्क स्टार्ट हुआ तब अमूल के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था, मिल्क। ठीक है, मेन कंसंट्रेशन फोकस वहां पे ही था, मिल्क में। तो दे केम अप विद अ ब्यूटीफुल एडवर्टीजमेंट, इफ यू रिमेम्बर, या आपने कहीं पे देखा हो। आप तो बहुत छोटे थे, क्योंकि आई वॉज अ किड व्हेन आई सॉ दैट एड, राइट, ऑलमोस्ट इन फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड आई वॉज देयर, राइट। सो आपने पता नहीं उसके बाद कहीं पे वो एड अगर देखी हो किसी वेबिनार या किसी उसमें, तो देर वॉज अ ब्यूटीफुल एड विच वॉज दूध 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 दूध, पियो ग्लास फुल दूध, दूध है गुड इन एवरी सीजन, पियो दूध फॉर हेल्दी रीजन, ऐसे ऐसे करके दूध 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 करके एड बनाई थी अच्छी। ठीक है, डीडी में आती थी, यस, राइट। सो दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द पॉपुलर एड। तो तब दे वर ओनली इनटू मिल्क। उसके बाद की जो उनकी एडवर्टीजमेंट आई, वहां पे दूध भी दिखा रहे थे, चीज भी दिखा रहे थे, बटर भी दिखा रहे थे। लेटर ऑन दे केम अप इन द बल्क ब्रांडिंग ऑफ ऑल दियर प्रोडक्ट। ओके, later on they came up with the bulk branding of all the products. When they came up with launching of Amul milk, flavored milk, right? हाँ, अमूल दूध पीता है इंडिया, ओके। When they came in this flavored milk, जब वो flavored milk स्टार्ट हुआ, तब जब भी वो न्यू प्रोडक्ट लेके आए, तब उन्होंने इंडिविजुअल ऐड करी उस प्रोडक्ट को लेके। यस, ऑल दिस कूल अपील, राइट, अमूल कूल को लेके। फिर जब टिन में आए, दैट कॉफी टिन एंड ऑल, राइट, सो तब उन्होंने इंडिविजुअल ऐड करी। बट अभी मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन द इंडोर्स दी एड, दे सी टू इट दैट लास्ट में एक पूरा इमेज आ जाता है, जिसमें वो पूरी की पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, आइसक्रीम, शिखंड, whatever chocolates, whatever they are making and whatever they are selling, right? So this is where you are saving cost. आप एक एड में सारे के सारे प्रोडक्ट्स अपने दिखा दे रहे हो। जैसे एमवे की एड है, राइट, इफ यू सी एमवे एड, एमवी की एड अगर आपने देखी, उसमें भी सारे प्रोडक्ट्स। तो दिस इज सेंट्रल ब्रांडिंग, पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स एक साथ एक एड में आ गए। सो दिस इज वेयर यू आर सेविंग कॉस्ट। आउटलेट आपने खुद की बना ली, कॉस्ट सेव हो गया। आप अलग अलग दुकान में जाओ और अपने प्रोडक्ट सेल करो, यू हैव टू गो टू सो मेनी प्लेस। सो व्हाट इज कॉस्ट इफेक्टिव? हैव योर ओन आउटलेट। ठीक है, तो मार्केटिंग इकोनॉमीज, ये सारी मार्केटिंग की बचत है, कि हर एक जगह पे जाके, अलग अलग जगह पे जाके बेचना, इससे अच्छा है कि अपनी खुद की आउटलेट बना लो। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसे रहते हैं, टाइम रहता है, एफिशिएंसी रहती है, देन अगेन अपनी आउटलेट भी बनाओ और दूसरी जगह पे भी डिस्ट्रीब्यूट करो। तो आप लोकल ये जो शूज वाले होते हैं बेचते हैं, वहां पे आप नाइकी, रिबॉक सब देखोगे, पर जितनी वैरायटी आपको रिबॉक के या नाइकी के शोरूम में दिखेगी, उतनी उस दुकान में नहीं मिलेगी। समझे? स्केचर्स तो दूसरी ऑर्डिनरी शॉप्स में भी मिलता है, पर जितनी वैरायटी आपको स्केचर्स में मिलेगी, उतनी वहां पे नहीं मिलेगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन हैव योर मार्केटिंग। मार्केटिंग करना, एक साथ प्रोडक्ट को एक साथ डिस्प्ले में रखना, सेव इन द कॉस्ट, राइट। अमूल आउटलेट्स हर जगह पे शुरू हो गए। पहले अमूल कहाँ पे था? तो ग्रोसरी वालों को ये काम दे दिया था कि यू सेल आवर मिल्क, यू सेल आवर आइसक्रीम्स एंड दिस एंड दैट। अभी एवरी लाइक हर 2 किलोमीटर में आपको एक अमूल आउटलेट दिखेगा। सो दीज आर मार्केटिंग एफिशिएंसीज। इज दिस क्लियर? सो कैसे मार्केटिंग कॉस्ट को आप घटा सकते हो? अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं रिवर्स एग्जाम्पल देती हूँ। हिंदुस्तान यूनिलीवर, लक्स के लिए पूरी एडवर्टीजमेंट अलग आती है, लाइफ बॉय के लिए पूरी एडवर्टीजमेंट अलग है, पूरा खर्चा, पूरा सेटअप। इनफैक्ट एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी अलग है, लक्स की अलग है, डव की अलग है, लाइफ बॉय की अलग है, डेटॉल की अलग है, सबकी अलग अलग है। सो इट इज डुप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट, इजंट इट? बट दैट इज हाउ दे मार्केट, क्योंकि लक्स में दे हैव 10 to 15 वेरिएंट। सो उसकी एक अलग एड बनाना बनता है, समझे?
So how you will go for your advertisement? Clinic Plus, yes, right, Clinic Plus. तो रूरल सेगमेंट में अपनी एक वो बनाना, जगह बनाने के लिए दे केम अप विद दिस प्रोडक्ट क्लिनिक प्लस. वो हम किसी और दिन बात करेंगे, बिकॉज मार्केटिंग इज समथिंग जो बहुत वाइड एरिया है, एंड वी लव टू डिस्कस एग्जाम्पल्स. क्लियर है ये कि जितना ज्यादा आप एक साथ ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा. जितना बड़ा गोडाउन लेके आप स्टोर करोगे, वेयरहाउसिंग कॉस्ट बच जाएगा. जितनी एडवर्टीजमेंट में अपने ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स का इंडोर्स कर पाओगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बच जाएगा. सो अभी अमूल की एड जो आती है, राइट, अभी इतनी आती ही नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर. सो न्यूज़पेपर में वो कटिंग आ जाता है, ठीक है. सो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे प्रोडक्ट उनके हाईलाइट हो जाते हैं, राइट. जैसे मैंने बोला, हर 2 किलोमीटर में अमूल का ये पार्लर हो गया है, तो वहां पे उसका जो होर्डिंग है उसमें सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ डिस्प्ले कर दिया. सो हाउ यू कैन हैव सेविंग इन इकोनॉमी इन मार्केटिंग. मार्केटिंग का खर्चा कैसे बचाए, ठीक है. अब जोमेटो एंड स्विगी, इट्स ऑल इकोनॉमीज इन मार्केटिंग. हर एक कंपनी ने टाई अप कर लिया जोमेटो और स्विगी से. क्यों, राइट. अगर वो खुद के इतने डिलीवरी बॉय या स्कूटर्स या कुछ रखते तो कितना कॉस्ट होता. सो व्हाट दे हैव डन, आउटसोर्स. मिंत्रा इज अगेन अ प्लेटफॉर्म जहां पे मार्केटिंग इकोनॉमीज एनहांस होती हैं, राइट. सो आई होप कंसेप्ट इज क्लियर. व्हाट इज मार्केटिंग इकोनॉमीज? सेविंग इन स्मॉल कॉस्ट रिलेटेड टू मार्केटिंग, ठीक है, राइट. सो नेक्स्ट टू वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है. अभी 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे आपको बोलनी है, राइट. सो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन. ओके, लेट इट बी. ओके, सो पहली चीज, स्टूडेंट्स, अभी हमारे हफ्ते में सिर्फ एक सेशन होंगे, ठीक है, दैट टू ऑल्टरनेटिव वीक, राइट. सो ट्यूसडे आपके सेशन होंगे. आज हुआ, नेक्स्ट वीक नहीं होगा, उसके बाद की वीक में होगा. मंडे आपके कोई सेशन इकोनॉमिक्स के नहीं होंगे, ठीक है. हमारा सिलेबस काफी आगे चल रहा है, राइट. सो कीपिंग दोस कंसिडरेशन, सेशंस घटा दिए हैं हमने, राइट. एंड 1 मंथ बिकॉज आई एम बिट एंगेज इन सम अदर थिंग्स. ये एक महीना, राइट, फ्रॉम दिस वीक टू 15th of January, ऑल्टरनेट वीक. सो अब हम नेक्स्ट वीक नहीं, उसके बाद के वीक में मिलेंगे, ठीक है. दूसरी चीज, हम भले 2 वीक में एक बार मिल रहे हैं, यू विल बी इन टच विद द सब्जेक्ट, समझे. यू विल बी इन टच विद द सब्जेक्ट. सो आपको असाइनमेंट आज अलोकेट होंगे. इज दिस क्लियर? यू विल बी राइटिंग असाइनमेंट, राइट. असाइनमेंट का पीरियड मैं बढ़ा रही हूं आपके लिए, राइट. सो असाइनमेंट आप 3 पार्ट में दोगे. असाइनमेंट 3 पार्ट में आपको देने हैं. फर्स्ट पार्ट दैट इज असाइनमेंट फ्रॉम मॉड्यूल 2, ठीक है. वो आपको क्वेश्चंस और उसकी टाइमलाइन मिल जाएगी 1 हफ्ते के बाद की. 5 क्वेश्चन है, 7 दिन दे रहे हूँ. उसके बाद अगेन देर विल बी 5 क्वेश्चन, 7 डेज. तीसरे वीक में वी विल हैव एग्जाम, ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम, कंपलसरी है आपके रूब्रिक्स के लिए, ठीक है. जहां पे मैं क्वेश्चन दूंगी, आपको ऑनलाइन सर्च करके उसका आंसर देना है, या हमारा जो मटेरियल है उसमें से सर्च करके आंसर देना है. तो वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे. इट विल बी ओपन बुक एग्जाम इन शॉर्ट, राइट. 10 से 15 टर्म्स होंगे, जिसका आंसर ऑलरेडी आपके पास पीपीटी में या बुक में है. आपको 3 घंटे में वो करके एग्जाम सबमिट करनी है, ठीक है, ऑनलाइन. ओके, राइट. सो उस तरह से ये पूरी प्रोसेस होगी. जिन स्टूडेंट्स ने लेट एडमिशन लिया है, लेट ज्वाइन करे हैं, विवेक, पूरा का पूरा मटेरियल वो ई बुक में है. इट्स ऑलरेडी देयर इन द गूगल क्लासरूम. सेकंड, हर एक चैप्टर की मैं अभी आपको ये कर दूंगी, दूसरी एडिशनल नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी.
तो आपको जिसमें से भी कंफर्टेबल हो, ई बुक में से कंफर्टेबल हो तो आप उसमें से पढ़ना, मटेरियल जो मैं अपलोड करी हूँ उसमें से कंफर्टेबल हो तो उसमें से पढ़ना। रिमेम्बर, जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, उसको आपको हमेशा बेस में रखना है। ठीक है? क्या करण, हाउ टू फाइंड व्हाट? हाँ, ये मॉड्यूल, ये सारा मटेरियल जो भी आप देख रहे हो वो सारा मैं अपलोड कर दूंगी। और ये मॉड्यूल अभी नहीं आएगा असाइनमेंट में, ठीक है? दिस विल कम इन द मंथ ऑफ जनवरी। पर सारा का सारा जितना भी हमने अभी तक किया है वो सारा नोट्स, पीपीटी, जो भी मैंने क्लास डिस्कशन में यूज किया है वो सारा पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा आज। पोर्टल पे यू कैन फाइंड इन द क्लास वर्क, सॉरी नॉट पोर्टल, गूगल क्लासरूम है ना करण? ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अभी देखो ये आपकी क्लास है। ठीक है, मेरे में ये ग्रेड वाला टैब है क्योंकि मैं फैकल्टी हूँ, आप में ये ग्रेड वाला टैब नहीं है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्लासरूम है, यहाँ पे आएगा क्लास वर्क। ठीक है, अभी देखो असाइनमेंट, राइट? तो यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया है, राइट? वीडियोस यूनिट 3, तो ये सारे यूनिट 3 के वीडियोस की लिंक यहाँ पे मैंने दे दी है। तो इफ यू विल क्लिक हियर, राइट, यहाँ पे सारे के सारे वीडियोस की लिंक है। ठीक है, तो इस तरह से यूट्यूब पे भी हम वीडियोस लगा रहे हैं, राइट? सो यू कैन इवन चेक फ्रॉम देयर रीडिंग मटेरियल। अभी रीडिंग मटेरियल में आप क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा मटेरियल पूरा, ई बुक, इकोनॉमिक्स यूनिट, ये आपका वो है क्या बोलते हैं, सिलेबस, यूनिट 1 की पीपीटी, यूनिट 1 के नोट्स। ठीक है, ई बुक में से आपको यूनिट 2 एंड यूनिट 3 करना है, ई बुक में से। अभी का ये जो पूरा चल रहा है ना मॉड्यूल हमारा, और जो वो गया कस्टमर कंज्यूमर थियरी, उसकी नोट्स मैं अभी ऐड कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे वीडियोस की लिंक है। ओके, सो यहाँ पे जितने भी क्लास आपने मिस करे हैं, यू कैन क्लिक हियर एंड यू कैन सी द सेशंस, आप वो सेशंस अपने आप से पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके, सो यू कैन स्टडी देर। एक एक्सेल की फाइल मैं अपलोड करूंगी इसमें। ठीक है, एक एक्सेल की, अगर ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एक एक्सेल की फाइल अपलोड करूंगी जिसमें डेट वाइज कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस किया और उसकी यूट्यूब वीडियो लिंक वो है उसमें। सो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर, राइट? सेम वीडियो है, वो यूट्यूब पे है, तो एक साथ सबकी लिंक मिल जाएगी उस फाइल में से। सो हेवन, करण एंड राइट कुलदीप, जिन्होंने भी एडमिशन लेट लिया है, यू कैन रिफर थिंग्स फ्रॉम देयर। अंजलि, विवेक, राइट, जितना भी आपका भी अगर मिस हुआ हो तो अभी हमारे सेशंस नहीं है, तो आपके तो उस स्लॉट में यू कैन गो थ्रू द वीडियोस एंड यू कैन रिफर द नोट्स एंड यू कैन रिकवर जितना आपने मिस किया है। उसके अलावा आपको कभी भी कोई भी डाउट होगी, वी कैन टेक सम एडिशनल सेशन, कोई रेमेडियल सेशन हम आपके लिए रख लेंगे। ठीक है, पर पहली कंडीशन रेमेडियल सेशन की ये होंगी कि क्या आपने पूरे नोट्स देखे हैं, क्या आपने एग्जिस्टिंग वीडियोस देखे हैं, उसके बाद वी विल गेट इनटू द रेमेडियल सेशंस। ठीक है, बट आई विल बी देयर टू हेल्प। ओके, सो ये आपको करना है, यू हैव टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट, राइट? और जैसे मैंने आपको बोला, आपके इंटरनल रूब्रिक्स के मार्क्स, फर्स्ट मार्क्स अटेंडेंस, जिन लोगों ने लेट एडमिशन लिया है उनकी अटेंडेंस उस तरह से काउंट होंगी, पर योर अटेंडेंस परसेंटेज विल बी हैविंग वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स की ओपन बुक टेस्ट जो मैंने बोला ना, दैट आई विल टेक। ठीक है, ओपन बुक टेस्ट, आप आराम से बुक में से देख के यू कैन राइट आंसर। थर्ड इज असाइनमेंट, असाइनमेंट की वेटेड 10 मार्क्स की है। सो यू हैव टू राइट 20 क्वेश्चन इन दिस 5 मॉड्यूल। ये पांच के पांच जो मॉड्यूल हैं उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट
20 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में है, दैट यू हैव टू राइट इन योर असाइनमेंट। क्लियर है? तो जिन लोगों ने अभी तक अटेंडेंस को सीरियसली नहीं लिया है, आप प्लीज उसको सीरियसली लेना, राइट, बिकॉज देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्योंकि अटेंडेंस में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। असाइनमेंट आप अच्छे लिखोगे ना, आई अश्योर यू। और असाइनमेंट हैंड रिटन लिखना आया, मुझे वर्ड फाइल में कुछ कॉपी पेस्ट करके मत भेज देना, ठीक है? यू हैव टू राइट इट ऑन योर हैंड, विद योर हैंड, राइट, इन अ बुक। बुक में लिखना है उसको, ठीक है? सो नाउ आई एम मार्किंग योर अटेंडेंस। सो आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट योर नंबर, योर नेम, अपनी अटेंडेंस डालते जाना। अखिल, निहिया, राज, संगीता, जुगल, Akhil was there. Where is he right now? Raj, Jugal, Deep, Janvi, Kuldeep, not you. Deep, Deep. Kuldeep, you wait. आपका बाद में आएगा. Deep, Janvi, Gautam, Renish, Jemin, भावेश, हिमाद्री, मिलन, पार्थ, जीत, हार्दिक. Hardik, please be regular now onwards. Harshit, Moin, Dhruti, Yogdeep, Anik, Parthvi. Melvin, please wait. Heaven, please wait. Janvi, I will not mark your attendance. Every time you miss when I speak your name. Parthvi, sorry, Parthvi, Kishan, Mitali, Ronak, Abhishek, Riddhi, Parth, Hiren, Rohan, Darshan, Rohan Parsana, are you there? Jagmal, Ketan, Vishal, Yashpal, Ronak Dhaduk, Darshit, Brinda, Pranav, Rajveer, Anu Singh, Dhruvin, Isha. Isha, after so long time, I was really worried. You were so sincere and regular in the initial days, right? Please go through all the videos, right, and cover up everything. If you have anything, any issues, then let me know. Uttam, Tirth, Nilesh, Tirth, you're not there. Nilesh, Vaibhav, Gansham, Devangi, Harsh, Harsh, okay, Yash Solanki, welcome to the class, Yash. Be regular now. You have missed so many sessions. Rohan, Yash Bakhtaria, Sajit, Raja, Dhruv, Dhruv Solanki, Vivek, Anjali, Mirik, Raviraj, Jai, Kuldeep, Jai, you too, right? You can just go through the videos and cover up the things. Gautam, I marked you present. Heaven, right? Same applies to you. Is there anybody who's Molin? Molin? Okay. Right. So thank you, students. And please keep reading because your exams, right? Any point of time you will be expecting your current marked, right? Anytime
right? In the end of December or maybe first week of January, you will be expecting your midterm exam. Okay? Karan, I've marked you present because you were there in the interaction. So you're marked present, okay? So please keep studying, right? Because if there will be MCQ, राइट, हमें लगता है कि एमसीक्यू बहुत इजी होते हैं, इंकी पिंकी पोंकी कर लिया, आंसर चूज कर लिया. इट्स नॉट द केस, राइट? सो start reading. Okay, thank you so much. And by today or tomorrow morning you will have all notes and assignment questions. Thank you. Right, you all may leave for your next class. Any questions if anyone have, you can put in the chat box. Rest everyone can leave. Avesh, are you there? Ketan Jagmal, you may leave. Thank you.